Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे. Today we'll study poem number 7, The Huntsman by Edward Lowbury. Sorry girls, I couldn't make presentation today. I couldn't prepare slides, but I'll try my level best to explain in the best possible way. So the poem is Huntsman, as the very title suggests that this would be about something hunting, and it would be about some African countries. So in fact, the Huntsman, this very title Huntsman, is an interesting poem that is based on an अफ्रीकन फोकलोर. अफ्रीका जैसे हमारी भी पाकिस्तान में भी कुछ फोकलोर्स होती हैं, दास्तान होती है, इसी तरह ये अफ्रीकन फोकलोर पे ये पेश करती है. ये स्टोरी, इसमें एक स्टोरी बताई गई है. सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ a huntsman, and his name is Kagwa. Kagwa. What is his name? His name is Kagwa, and he used to hunt lions in the forest. He was not an ordinary huntsman. He was a very experienced huntsman. That's why he could easily hunt lions. Lions with shikar karta tha. One day while he was hunting, he saw a talking skull of a man. Skull कहते हैं, किसको कहते हैं? खोपड़ी को कहते हैं. वो कहते हैं कि उसने एक दफ़ा जो है एक बोलती हुई खोपड़ी देखी. शिकार पे गया और उसने देखी. He asked the skull how did he come there. और उसने स्कल से पूछा कि वो कहाँ, कैसे वहाँ आई. The skull replied that talking brought him there. और जो स्कल है उसने जवाब दिया कि बोलना जो है वो उसे वहाँ पे लेके आई. So Kagwa was surprised to see the talking skull. और जिस तरह होता है ना, किसी को बहुत कोई इसी तरह की चीज़ मिल जाए जो कि पॉसिबल नहीं है. सो ही ऑल्सो फाउंड दैट थिंग एंड ही हर्डली वेंट टू द किंग्स कोर्ट. और भागा भागा जो है बादशाह के सलामत के पास गया. उसने कहा कि मैं बादशाह को ऐसी बात बताऊंगा तो बादशाह जो है वो डेफिनेटली ही वुड रिवॉर्ड हिम, उसे बड़े इनाम और इकराम से नवाजेगा. सो ही वेंट ओवर देयर एंड ही told him about the talking skull. Skull, बार बार मैं बता रही, वर्ड रिपीट होगा. It means खोपड़ी. The king sent 2 guards with Kagwa to search the talking skull. अब जो है बादशाह ने भेजा जी, अपने साथ गार्ड्स को भेजा कि जाओ देख कर आओ. अगर तो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कागवा को भी वहीं पे मार देना. So after long search, they found the talking skull. Kagwa asked the same question. How did he come there? Kagwa ने गार्ड्स के सामने उस खोपड़ी से दोबारा पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो. तो उसने क्या जवाब दिया होगा, ये हम पोइम पढ़ के फाइंड आउट करेंगे. डज द स्कल आंसर एनीथिंग. और क्या अगर आपको ऐसी कोई चीज़ पता चल जाए जिस पे कोई बिलीव नहीं करेगा, तो क्या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आगे स्प्रेड करनी चाहिए या आपको जो है थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए? क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड विद दैट कागवा. So here's the first stanza. Kagwa hunted the lion. Through bush and forest went his spear. Spear किसे कहते हैं? Spear कहते हैं नेज़े को. ठीक है. So Kagwa was a very experienced huntsman, and he used to hunt lions, and he was so accurate in his aim that he could hunt or he could target very easily. So one day he found the skull of a man. So this happened with him that one day when he went out in the forest of Africa, in the jungle of Africa, there he found a very unusual thing, and that was the skull. Skull कहते हैं खोपड़ी को. That he found the skull of a man and said to it, and he talked to the skull. So all these things cannot happen in reality. So this happened as it is a folklore. एक दास्तान है जो कि इसमें बताई गई है. With why does
the writer quote this thing because he wants to give some moral lesson. ठीक है, moral lesson भी हम इसका draw करेंगे. So when he asked the skull how did it come there, so the skull answered, how did you come here. skull ने क्या जवाब दिया, skull opened its mouth and said, और skull ने मुंह खोला और जवाब दिया, talking brought me here. So this is very important, talking brought me here. So one should be very careful when a person says anything. जब इंसान कोई बात करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से बात करनी चाहिए, उसको हर जगह हर बात नहीं कर देनी चाहिए. So there is a irony कहते हैं जिसमें जो हो रहा होता है उसमें उससे उलट सिचुएशन हो जाती है. सो यहाँ पे हंट्समैन है, शिकारी है, वो खुद शिकार हो जाएगा अपनी जुबान की वजह से. कैसे होगा, विल ट्राई टू फाइंड आउट. सो इन दीज लाइन्स द पोइट इज नरेटिंग अ ट्रेजिक story of an African huntsman. So tragic story है of a huntsman whose name is Kagwa, and he was a very brave hunter, and he used to hunt lions in the forest, and he could hunt with his spear and sword. And once he was wandering in a forest, he came across a skull of a man, and he asked the skull, how did you come here? The skull answered, talking brought me here. So in fact, a piece of advice for Kagwa that sometimes irresponsible talk proves fatal. बाज़ दफ़ा आपकी जो लूज टॉक होती है या इररिस्पॉन्सिबल टॉक होती है वो क्या बनती है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बन जाती है. बट कागवा फेल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द वर्ड्स. और कागवा जो है, इसके जो स्कल ने उसे कहा टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, वो इस बात को समझ ही नहीं सके. उसने क्या किया, देखते हैं जी कागवा साहब ने क्या किया. कागवा हरेड होम, कागवा भागा भागा घर गया जी. वेंट टू द किंग्स चेयर एंड स्पोक, और फिर वो बादशाह के दरबार में गया, कोर्ट में गया, उससे बात की. इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, मुझे तो बादशाह सलामत एक जो है जंगल में एक बोलती हुई खोपड़ी में नजर आई है. द किंग वेंट साइलेंट, बादशाह खामोश रहा, बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव दिस थिंग, क्योंकि ये अनयूजुअल बल्कि इम्पॉसिबल है कि एक टॉकिंग स्कल किसी को मिले. देन ही सेड स्लोली, फिर उसने आहिस्ता से कहा, किसने, बादशाह ने कहा, नेवर सिंस आई वॉज बोर्न ऑफ माई मदर, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हैव आई सीन और हर्ड ऑफ स्कल विच स्पोक, मैंने तो आज तक कभी ऐसी स्कल के बारे में नहीं सुना जो कि बोलती हो. सो कागवा कुड नॉट कंसील हिज अनयूजुअल डिस्कवरी. ठीक है ना, वो छुपा नहीं सका उसकी अनयूजुअल किस्म की डिस्कवरी थी कि उसे बोलती हुई खोपड़ी मिल गई है. And he was expecting reward, he was expecting something very precious gift from the king. So he told this sensational story to the king के पास सीधा पहुंच गया, उसे जाके बता दिया. So the king remained silent. So he was very he didn't believe his talk, he didn't show surprise, he was not at all surprised. बिल्कुल हैरान नहीं हुआ उसकी बात को, उसने बिल्कुल नहीं माना. क्यों, because he said never since I was born of my mother. So he thought that this is just a cock and bull story. उसने कहा ये फर्जी मन घड़त इसने कहानी बना ली है, because he has never ever heard such type of story in his whole life that a skull can talk. So there is stanza number 3. Then what happens? Two of you go with him. अब बादशाह ने किसको कहा, टू ऑफ यू गार्ड्स को कहा कि तुम दोनों उसके साथ जाओ एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और उस बोलती हुई खोपड़ी को देख लेकर आओ. बट इफ हिज टेल इज लाई, टेल इसकी कहानी, इसकी कहानी कागवा की कहानी, कागवा ने जो स्टोरी सुनाई है बोलती हुई खोपड़ी की. बट इफ हिज टेल इज लाई एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, और अगर जो है जो स्कल है वो नहीं बोलती, एक लफ्ज भी नहीं बोलती, दिस कागवा मस्ट डाई, तो क्या उसे रिवॉर्ड मिलेगा, कागवा को मरना पड़ेगा. सो दिस वाज द ऑर्डर. बादशाहों के तो ऑर्डर्स भी बड़े बड़े होते हैं ना.
सो द किंग सस्पेक्टेड, किंग ने यकीन नहीं किया उसकी बात का. He remained silent. After that, he ordered his two guards to go with him and find the talking skull. If his story is false, he would die. So, the king suspected the truth of Kagwa's story. ठीक है. The king sent two of his soldiers with the hunter. He advised them to search the talking skull in the forest and see if his claims was true. The king further ordered guards to kill Kagwa if the story was false. अगर तो कहानी झूठी हुई तो उसने कहा कि इसको उसी टाइम मार देना. The king further ordered this thing. ठीक है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. उसको स्कल मिलती है या नहीं मिलती. They rode in the forest. वो जंगल में गए, हर जगह गए. For day and nights they found nothing. दिन रात उन्होंने तलाश किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला. At last they saw the skull. आखिरकार उन्हें वो खोपड़ी मिल गई. Kagwa said to it, और कागवा ने उस खोपड़ी को वैसे कहा, How did you come here? तुम यहाँ कैसे आई हो? The skull said nothing. खोपड़ी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया. Kagwa implored. अब यहाँ पे इम्प्लोड का होता है बेग करना, मिन्नत समाजत करना. बट द स्कल सेड नथिंग. लेकिन खोपड़ी तो बोली नहीं. ये क्या हो गया? पहले तो बड़ा बातें कर रही थी, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर. अब वो बोली नहीं. व्हाई? सो in these lines the poet tells us that the king's guards went to the forest along with Kagwa. ठीक है. And they searched for the skull for many days and nights. At last they found the skull. Kagwa asked it the same question, how did you come here? ये वाला लिखा हुआ है, how did you come here? ये उसने उसे पूछा. Now this time, but the skull remained silent. कुछ नहीं बोली. Said nothing, remained silent. So he implored, he requested. मिन्नत समाजित की implore, request की उसने again and again to speak and save his life. But what happened? Ironically, situation क्या हुई? The skull did not speak. Skull तो कुछ भी नहीं बोली. Skull remained silent at this time. So what happens? फिर उसके साथ देखें क्या होता है. खामोश रही. So the guard said kneel down. Guards ने उसे क्या कहा? Kneel down. Kneel यानी bend होने की पोजीशन में आ जाओ. घुटने टेक दो. This was the order of the king. So they killed him with sword and spear. और उन्होंने उसी sword और spear जिससे वो शिकार किया करता था, आज वो खुद शिकार हो गया. Then the skull opened its mouth. जब वो उसे मार दिया तो तब वो खोपड़ी बोली. देखे पहले नहीं बोली, अब बोली है. क्या कहती है? Huntsman, how did you come here? कैसे आए शिकारी तुम यहाँ? And the dead man answered. बेचारा शिकारी से जवाब दिया, talking brought me here. ये बोलना जो है, ये रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू जो है, ये टॉकेटिवनेस जो है, ये मुझे यहाँ पे लेकर आई है. So in these lines, the poet concludes the tragic end of Kagwa's story. When the skull did not speak as per the order of the king, the guards promptly beheaded Kagwa. ठीक है, उसको सर तन से जुदा करना, behead होता है, उसको कर दिया. After his death, the skull opened its mouth and asked Kagwa how he had come here. उसके बाद जी कागवा से पूछा, जी हाँ जी कहाँ कैसे आए हो जी यहाँ पे. And Kagwa learned this lesson that one should be very careful with one's words. कहते हैं ना, पहले सोचो तोलो फिर बोलो. So one should be very careful in one's talk. उसको क्योंकि sometimes a person has to learn a lesson at the expense of one's life. So he has learned this lesson. अपनी ज़िंदगी गंवा के उसने ये सबक सीखा कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये, एक तो बहुत हेस्ट नहीं दिखानी चाहिए थी, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरा जो है मुझे हर बात हर एक से करने की नहीं होती है. ठीक है. वन शुड कीप वंस सेल्फ साइलेंट. सो ये कहा जाता है ना, इफ टॉकिंग इज सिल्वर, योर साइलेंस इज गोल्ड. सो साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सनस लाइफ. वन शुड बी वेरी केयरफुल विद वंस वर्ड्स. इसके थोड़े से हम जो है मेन पॉइंट्स में आपको बताती हूँ जो कि आपने रिमेंबर करने हैं इन एक्सप्लेनेशन और वैसे भी
ओवरऑल आपको पता होना चाहिए. सो आयरनी ऑफ सिचुएशन क्या हुई, कागवा वॉज हंटर एंड ही वॉज हंटेड. ठीक है, कागवा खुद शिकार करता था और खुद वो शिकार हो गया. दिस वॉज द सिचुएशन एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग एंड ही वॉज पनिश्ड एंड ही वॉज बिहेडेड. उसका था कि मुझे बड़े अनामो इकराम मिलेंगे. उसे क्या मिला, उसे मिला जी उसको मिली जी कत्ल की सजा उसको मिल गई. सो ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज टंग, अपनी जुबान की वजह से उसको जो है सजा मिली. सो द पोइम हैज अ डीप मैसेज, एक बड़ा गहरा पैगाम हमें देती है. फॉर इट्स रीडर, पढ़ने वालों के लिए, द लेसन इज टू अवॉइड द अननेसेसरी एंड लूज टॉक. अननेसेसरी बातें मत करें, लूज टॉक मत करें. टॉकिंग कैन, देखे ना यहाँ पे वो कहते हैं टॉकिंग ब्रॉट मी हियर. सो योर लूज टॉक, योर irresponsible talk, your unnecessary talk, your talk without any like without any logic cannot be accepted too. So you have to suffer sometimes a lot. So the poem talks about, the poem tells this in a very simple way. लैंग्वेज देखिए कितनी आसान है और कितनी आसान एक फोक अफ्रीकन फोकलोर से जो है उसने एक स्टोरी लेके और कितना बड़ा और डीप लेसन जो है वो सब रीडर को दे दिया है कि कि जो है one should like be very careful while using his words. So Kagwa was a very strong man. He was a simple person and he lacked wisdom, even though he was very experienced uh, huntsman, but he was very simple fellow. ठीक है, एक देहाती योगा ना, इसलिए जो है he was trapped very easily. So he could hunt any lion and any uh, dangerous animal very easily, but here he is hunted himself. So this is very important. और आइवनी ऑफ सिचुएशन जो है ये भी आपने इसकी जहन में रखनी है. इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, ह्यूमर भी है, सिक है. हमें हंसी आती है लेकिन हंसी नहीं भी आती. हमारी हंसी आते आते रुक जाती है. बाय, बिकॉज दिस इज सिक ह्यूमर. थोड़ा सा जो है ना ब्लीक किस्म का ह्यूमर है. सो आपने जो है इसमें एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, शुरू में हमें बड़ा सस्पेंस होता है और वो आपने उस पर तैयार करना है क्वेश्चन. फिर आपने जो है अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन तैयार करना है इसका. फिर आपने जो है इसके जो फनी एलिमेंट्स हैं उसको आपने तैयार करना है. द पोएम द हंट्समैन इज अ ब्लेंड ऑफ फनी एंड अनफनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. द एलिमेंट ऑफ आयरनी क्रिएट्स अ शॉकिंग इम्पैक्ट. ये आपने इसमें तैयार करना है. सो हम इसको अगर सम अप करें तो हम कह सकते हैं, एज फ्लाइज टू द wanton boys are we to gods, they kill us for their supports. This is these the lines which I have quoted are from Shakespeare's play drama King Lear. So man is puppet in the hands of fate. Sometimes a man is trapped in his own words. Okay ji, this is enough for today. Thank you very much. I'll try to send some important points and questions in the WhatsApp group. Um, okay ji, thank you very much. Have a good day. Allah Hafiz.